Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Respected participants, I'm sure that I am audible and you are getting my voice. Okay. So it's 6 o'clock. Let's talk about the basic things, the basic details, and let's move on from here. Some new buddies, they have joined us. Welcome to MOCC's interview sessions 2022. And in these sessions, definitely we are going to cover whatever is the part of your interview, whatever you're supposed to know and whatever you are supposed to prepare. But before proceeding further, I just need a minor confirmation that I am audible and you guys are getting my voice clearly so that I may proceed further confidently that I'm not speaking in the data. So just supposed to leave a simple message in the chat box, Ishfaq and all the things. Thank you so much, Ishfaq. Respected participants, in today's session, we are going to cover three basic things. First of all, we need to understand after you written test and when you are going for your interview, you need to understand where you are standing exactly. The picture is different this time. This time we are not talking about the test, we are talking about the interview. And interview is that is different than that of written test. आप इंटरव्यू की स्टेज पर जब पहुंचे हैं, you have already outshined and you have left a lot many people behind. So this is a perfectly fine stage where you are supposed to work more and more on abilities. In today's interview, in today's session, we are going to talk about three major things: your introduction, what you are supposed to do, and how you are supposed to do. Especially, we will take some, we will reserve some minutes for PPSC, that is for Punjab Public Service Commission, because Punjab Public Service Commission is going to schedule the interview in upcoming days. So the participants who are from Punjab, definitely they need these basic guidelines, and we will focus on these guidelines about PPSC. The second thing will be what you are introduction. So what you are going to say in your introduction, what your introduction is, and how you are going to speak there in your interview, in your introduction. The third thing will be about your verbal and non-verbal communication, in case you are aware of the meanings of these basic terms, so how you're going to apply in your interview. Fourth, that is a very basic thing, what you are supposed to do in the mid of your interview, क्या करोगे जब आप mid के अंदर हो, and how you're going to sum up the whole discussion. पहले तो एक चीज बड़ी important है, इसे पल्ले बांध लीजिएगा, और वो आपके पास ये है, आपने रिटर्न को क्वालिफाई कर लिया, फेयर इनफ. पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी कमीशन जब भी आपको रिटर्न के टेस्ट ले चुका है, तो रिटर्न के बाद एक चीज के बारे में वो काफी श्योर हो जाते हैं कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज है. अगर मैं इसे एक्सटेंडेड नॉलेज नहीं कहता, अगर मैं इसे वो वाला नॉलेज नहीं कहता कि जिससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है, एटलीस्ट आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर बेसिक नॉलेज है. सो अभी उनके जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ डिफरेंट हैं. पीपीएससी आने वाले चंद दिनों में आपके पास, आपके लिए कॉल लेटर्स जो हैं वो अपडेट कर देगी, आपको मसूल हो जाएगा एक मैसेज भी कि योर इंटरव्यूज प्लान, या बाकी कमीशंस भी ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करेंगे. बट द थिंग इज दैट बिफोर दैट यू आर सपोज्ड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और आपको काफी दिन से प्रिपेयर करना है. कमीशन के इंटरव्यू में जब भी आप बैठते हैं, उससे पहले की फॉर्मेलिटीज तो आपको पता ही होंगे. आपको ये पता होगा कि आपका रिटर्न का जो रिजल्ट है, ये बड़ी बेसिक सी चीज है, बट फॉर द सेक ऑफ दोज पीपल के जिन्हें इंटरव्यू के मार्क्स की अहमियत का नहीं पता, अंदाजा हो जाए कि आपके रिटर्न के मार्क्स जो हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 50% काउंट होते हैं, लेकिन आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो 100% काउंट होते हैं. सो इंटरव्यू के अंदर एक अच्छी और ढंग से लगाई गई शॉट जो है वो आपको काफी दूर तक लेके जा सकती है. इंटरव्यू में असल प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जब हम लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमने इंटरव्यू जो है वो प्रोसीड फर्दर करना है, हमें इंटरव्यू देना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है.
आपको अपने इंटरव्यू को लीड करना होता है, आपको अपने इंटरव्यू को करना होता है, वो इस तरह से करना होता है कि आपको खुद हर एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन छोड़ना है। हर एक क्वेश्चन में जब भी आप आंसर करते हो, तो आपके हर आंसर के बाद जो है, आंसर के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन मौजूद होना चाहिए, जो कि फर्दर उसी क्वेश्चन को इंटरव्यूअर जो है वो पूछे। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले याद रखिएगा कि पीपीएससी में इंट्रोडक्शन 3 तरह से होते हैं। एक तरह का इंट्रोडक्शन नहीं होता। मुमकिन है कि नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ, बाकी मिशंस के साथ भी यही अलमिया है, यही मैटर है। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू डायरेक्टली व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन। ये बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपसे पूछा जाए कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मोस्टली इंटरव्यूज़ में ये होता है कि चूँकि पैनल के अंदर जो हैं वो चेयरमैन साहब होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, एसएस 1 और एसएस 2। केपीके के इंटरव्यूज़ में बाज़ औक़ात जो हैं वो एसएस 3 भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन पंजाब में ये एसएस 2 तक रहते हैं। 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। जिस जगह पे, जिस सिटी में इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वहाँ से इन प्रोफ़ेसर्स को पिक किया जाता है। इनको जॉइन करने का क्राइटेरिया ये होता है कि कम से कम बीपीएस 18 या इससे जो हैं वो अबव के ऑफ़िसर्स होने चाहिए, वो बीपीएस 17 के इंटरव्यूज़ लेते हैं। खैर कमीशन के जो इंटरव्यूज़ हैं, चेयरमैन साहब जो हैं, इनको मरकज़ी रोल, सेंट्रल रोल जो है वो हासिल होता है, सो ही इज़ गोइंग टू लीड द इंटरव्यू। आपका इंट्रोडक्शन, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहला तरीक़ेकार तो ये है कि दे आर गोइंग टू आस्क यू द थिंग्स लाइक ओके, सो जेंटलमैन व्हाट इज़ योर नेम एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि बहुत रेयर चांसेस में होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, उसमें ये होता है कि चेयरमैन साहब ने फ़ाइल अपने हाथ में पकड़ी होती है और आपसे सीधा सवाल ये होता है कि ठीक है जी, ज़ाहिद साहब, नुमान साहब या इशफाक साहब, मुझे ये बताइए कि आपने अपनी लास्ट क्वालिफ़िकेशन जो है, यू हैव डन योर लास्ट डिग्री दैट इज़ मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। व्हाई मास्टर्स इन इंग्लिश? व्हाई नॉट मास्टर्स इन हिस्ट्री एंड द अदर थिंग्स लाइक दैट? सो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है कि आपके इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से भी शुरू हो सकता है। प्लस तीसरी सिचुएशन ये होती है कि मुमकिन है कि आपसे सिरे से ही इंटरव्यू ना लिए, आपका इंट्रोडक्शन ना पूछा जाए, वो कि ये भी बहुत रेयर चांसेस में होता है, लेकिन बहरकैफ एक्सेप्शंस जो हैं या रेयर चांसेस जो हैं, वो बहरकैफ चांसेस तो हैं। आप जैसे ही कमरे में एंटर होते हैं, फाइल्स में आपके नेम्स हैं, तो वो पूछते हैं जी, ओके जेंटलमैन, व्हाट यू हैव इन योर हैंड्स? सो व्हाट यू आर कैरिंग इन योर हैंड्स? अगर आपने कोई थीसिस पकड़ा हुआ है या आपने कोई रिसर्च आर्टिकल्स जो आपकी पब्लिकेशंस हैं, तो उसी पे बात जो है वो सिलसिला शुरू होगा। इंट्रोडक्शन आपके लिए लाज़मी है कि आप इसको प्रिपेयर करें। यू आर सपोज्ड टू प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? किस तरह से चलेंगे? इन तमाम चीज़ों को जानने से पहले एक चीज़ जान लीजिएगा कि इंट्रोडक्शन से पहले, इंटरव्यू से पहले आपने क्या करना है? क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बजाए इसके कि हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। देखिए इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि रिटन क्वालीफाई करना और इस दफ़ा क्वालीफाई करना, जिसमें पीपीएससी का इंटरव्यू रिटन जो है वो काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स था, और मेरिट जो है वो लास्ट टाइम 48.5 था और अभी जो है वो 43.75 पे आके गिरा। इसका मतलब ये है कि रिटन मुश्किल था, कुछ हटके था, कुछ डिफरेंट था। आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए, यू आर गोइंग टू कम्पीट 5 पीपल। PPAC, you know, they always call 5 people against a single seat. So first of all, keep it in your mind, you are supposed to focus more and more on your dressing. And by dressing here, I mean, you should always try to focus more and more on your comfortable zone. You are not going to move anywhere. You are not going to move anywhere else from your comfortable zone. Your dressing is very important. And by dressing here, I mean, normally it is considered that if you are going for the interview of English lecturer, you're supposed to be there in 3 piece or in pant shirt, the jeans and the other informal dresses जो हैं उनसे आप ग्रेस करेंगे। अपनी ड्रेसिंग आपकी जो भी हो, वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किस्म की भी आपको उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसमें फ़ील कर रहे हैं कि यार अच्छा, मेरे साथ शायद ये ना होता तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल ज़ोन में होता। दूसरी चीज़, ड्रेसिंग में आप जो हैं जब भी अपने ड्रेसिंग करते हो, शूज़ से लेके आप जो हैं अपनी शर्ट तक, तमाम चीज़ें ढंग से देख लीजिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती हैं।
because first impression is going to be the last impression in this case, and आपके इस केस के अंदर जो है ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग एक्सप्रेशन भी होने जा रहा है। सो इसको कतन आपने इग्नोर नहीं करना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनको जब आप समझेंगे, जब आप इन पे फोकस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये माइनर सी चीजें जो हैं वो बाज लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू की डेट तक आने तक अपनी ये चीजें सिलेक्ट नहीं करते हैं, और फिर बाद में जब एक परेशानी और एक हिजान सा उनके लिए हो जाता है, और इंटरव्यू वाले दिन वो परेशान हो रहे होते हैं कि अच्छा व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू नाउ। प्लस इसके साथ जो भी आप परफ्यूम वगैरह यूज करेंगे, डेफिनेटली दैट्स योर चॉइस, बट वो इतनी तेज इस्तेमाल ना कीजिएगा। बस जिस तरह से लोग ज्यादातर कर लेते हैं कि जो किसी के सर के ऊपर जो है वो अटैक कर रही है, या वो उनको उनके नॉस्ट्रिल्स को जो है वो अच्छी नहीं लग रही है। ड्रेसिंग वाला मामला, चूंकि अभी हम मेल के साथ, मेल मेजॉरिटी ज्यादा है, लेकिन फीमेल मेजॉरिटी जब भी अपनी ड्रेसिंग करेंगे वो करेंगे कि जिनमें वो भी कम्फी हैं, और मेल जो हैं वो जॉगर्स पहनने से गुरेज कीजिएगा, और ऐसे शूज जो कि बिल्कुल ही आप समझते हैं कि रनिंग ट्रैक्स के लिए हैं, और फीमेल जो हैं वो हील से अवॉइड करेंगे। इंट्रोडक्शन में यहाँ तक पहुंचने से पहले एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कुछ चीजें फॉरगेट नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई थीसिस किया था, अपने मास्टर में कोई डिसर्टेशन है आपका, आपको लगता है कि आपने कोई रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल लिख रखा है, आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं जो कि कमीशन को वाकईतन मुतासिर कर सकती हैं, और आपको लगता है, जैसे हमारे एक दोस्त हैं वो डॉन न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखा करते हैं, सो डेफिनेटली दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ दैट पर्सन, सो उनको जरूर लेके जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो थीसिस आपने तब किया था जब मास्टर्स के जमाने में, आपको ना तो रिसर्च क्वेश्चंस का पता है, ना आपको मेथोडोलॉजी का पता है, जो कुछ आपने लिखा है आप उसे डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इस स्टेप को अवॉइड करेंगे। अब अगली बात पहुंचती है कमरे में दाखिल होना। फाइल आपने ले ली, अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, आपने यकीनन अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने साथ ले लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आप पहुंचे, और मुझे यहाँ पे ये बताना चाहिए कि आप अपने इंटरव्यू के लिए जहाँ पे भी आपका इंटरव्यू सेंटर है, कोशिश करें कि एक रात पहले अगर वहाँ पे अरेंज हो जाए, कहीं पे आपके अगर फैमिली मेंबर्स हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे एक दिन पहले चले जाएं और वहाँ पे स्टे करें। दैट इज गोइंग टू गिव यू यू नो अ कंफर्ट, बिकॉज if you are going there directly on time or at time, maybe that is going to create problems, because we are living in a developing country. The traffic issues, the time issues, and a lot many problems may be there in pipeline for you. So एक दिन पहले अगर हो सके तो जरूर चला जाएगा। इंटरव्यू रूम में दाखिल होने से पहले आप जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे कोई 10 से 15 लोग आपके साथ होंगे। नॉर्मली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 20 लोगों को कॉल करता है एक वक्त में इंटरव्यू के लिए। मुमकिन है कि आप सुबह 10 बजे जा रहे हैं और आपका इंटरव्यू शाम 5 बजे प्लान हो रहा है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। और ये भी मुमकिन है कि आप 10 बजे जा रहे हैं और आपका इंटरव्यू जो है, जो प्लान हो रहा है, वो मुमकिन है कि 12 बजे के करीब प्लान हो रहा है या 10:30 पे हो रहा है। सो आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। और यहाँ पे वेट से मतलब ये है कि आपका ड्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप जो हैं वो उसको पहन के बैठे हैं लेकिन आप तंग हो रहे हैं। बाज़-औक़ात आपको पता है कुछ मेल साइड पे लोग ऐसी शर्ट्स को वियर कर लेते हैं, ऐसी शर्ट्स पहनते हैं जिनके बटन जो हैं वो एंड पे उनके काफ़ी टाइट होते हैं, जिन्हें वो फ़ील करते हैं कि मैंने 2-3 घंटे के लिए तो इसको पहनना है, उसके बाद मैं इसे रिमूव कर दूँगा। सो इन दिस सिचुएशन इट्स माय रिकमेंडेशन, कम्फर्ट ज़ोन के अंदर रहिएगा। अपने साथ कुछ ईटेबल्स ज़रूर लीजिएगा, एडिबल्स जो हैं वो ज़रूर ले लीजिएगा, कुछ खाने-पीने की चीज़ें ज़रूर ले लीजिएगा। आपको एक बैग लेके जाने की इजाज़त होती है, वो बैग अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप समझते हैं कि वो बैग रीज़नेबल है तो आप उसे रूम के अंदर भी लेके जा सकते हैं, जहाँ पे आपका इंटरव्यू है वहाँ पे आप उसे सलीके से नीचे रख सकते हैं। या इसमें आप बेसिक कुछ चीज़ें, कुछ बिस्किट्स या चॉकलेट्स या पानी की बॉटल जो है, आप जो अपने समझते हैं कि मेरे कम्फर्ट ज़ोन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इन तमाम चीज़ों को अपने साथ जो है वो ज़रूर रखेंगे। एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू डेफिनिटली द रिलैक्सेशन एंड द रिलीफ, कि आप कभी भी खुद को महसूस नहीं करेंगे कि अंडर प्रेशर हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब जहाँ पे 15-20 लोग वहाँ पे बैठे हैं आपके गिर्द जिनका इंटरव्यू है, अब यहाँ पे 2 तरह की सिचुएशन जो हैं वो होती हैं। पहली सिचुएशन ये होती है, याद रखिएगा, या तो आप डिस्कशन मूड के अंदर चले जाते हैं, जो लोग निकलते हैं कमरे से, प्लस जिनके जो बैठे होते हैं वहाँ पे डिस्कशन चल रही होती है, या दूसरा मूड है साइलेंट मूड, कि आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एंड यू आर नॉट डिस्कसिंग लाइक व्हाटएवर इज हैपनिंग देयर। एक्सपर्ट्स यहाँ पे 2 चीजें रिकमेंड करते हैं। पहले मूड में अगर कुछ लोग हैं वो फील करते हैं कि
उन्हें उनका हलक खुश्क हो रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू अटर अ सिंगल वर्ड, तो उन्हें डिस्कशन मूड को जरूर फॉलो करना चाहिए। उन्हें किसी करीबी फेलो के साथ कुछ गपशप लगानी चाहिए, और बेहतर है कि अगर वो लिटरेचर के बारे में हो या लिंग्विस्टिक्स के बारे में व्हाट दे आर सपोज्ड टू कवर, तो ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन दूसरा जो है वो है हमारे पास साइलेंट मोड। दूसरा हमारे पास साइलेंट मोड है, और साइलेंट मोड से मुराद ये है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पास आपका मटेरियल है जो आप समझते हैं कि आपको ढंग से कवर करना है, और ये चीजें आपको काफी फायदेमंद देंगी। मेरे केस के अंदर या हमारे जो मेरा अपना सिनेरियो रहा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ, मैं साइलेंट मोड में रहा, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि वट एवर दे वर डिस्कसिंग, मुझे लगता था कि मुझे किसी के साथ डिस्कशन करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वट एवर दे आर डिस्कसिंग, शायद उसकी बड़ी वजह ये थी कि लोग आपस में एक दूसरे को दिखा रहे थे कि उन्हें कितना आता है, और मैं इसमें बैठ के अपनी कुछ सिटी की कुछ बेसिक डिटेल्स देख रहा था जो कि इससे पहले मैं नहीं देख सका था। सो आप दोनों मूड में से जो भी मूड हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब इससे अगली बारी आती है कि कुछ लोग कमरे से निकल के आ रहे होते हैं और आप बाहर बैठे होते हैं इंटरव्यू के लिए। वो आके अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कमीशन की तरफ से उन्हें इंस्ट्रक्शंस होती हैं that they're not supposed to share whatever the questions were there in the interview room with the people who were sitting outside of the room. लेकिन फिर भी कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस की बनक पड़ जाती है, और ये सच है कि वो तकरीबन क्वेश्चंस उस दिन उस जैसे ही रहते हैं। जिस तरह से किसी से पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए कि कराची जो है और हैदराबाद के अलावा सिंध के बाकी 7 अजला का नाम बताइए, या पंजाब के अंदर लाहौर को, और जो है वो गुजरांवाला सियालकोट को निकाल के कोई बाकी 8 अजला का नाम बताइए, जो अगर आप जो हैं वो पंजाब से हैं, पंजाब से नहीं हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ होते हैं जीके के हवाले से जो सेम बात है। ये आप सिचुएशन अपनी मर्जी से देख लीजिएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन, बट ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब इससे अगला स्टेप आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो ले लिए जाते हैं, पहले आप वहां पे जब बैठते हैं और आपसे आपकी सिग्नेचर्स ले लिए जाते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहां पे पीपीएसी या आपका जो कंसर्न कमीशन है वो क्या करता है कि वो इसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेयरमैन साहब, जो चेयरमैन पैनल के होते हैं, उनके सामने जो है वो प्रेजेंट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। चेयरमैन साहब जैसे ही आप कमरे में पहुंचते हैं, उनके पास आपकी 4 चीजें मौजूद होती हैं। पहली, आपका रिटन रिजल्ट जो आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरा दिया। बाकी कमीशंस में तो शायद जो है उन्हें पहले पता चल जाता हो। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आप जानते हैं जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं, दोज पीपल हु हैव क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट, उन्हें अपने नंबरों का नहीं पता होता, लेकिन चेयरमैन साहब को पता होता है, और वहां पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को पता होता है कि आपके नंबर क्या है। नंबर 2, आपकी सारी की सारी परफॉर्मेंस उनके सामने होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। नंबर 3, आपके एनओसी सामने होते हैं, आप किस डिपार्टमेंट से हैं, एंड लास्ट में जो है उन्हें पता होता है कि आप जो हैं वो आपका जो एक पिक्चर उनके जहन में है वो ऑलरेडी वहां पे आपके जहन में होती है। अगर आप यहाँ तक देखें तो कुछ पीपीएससी के अंदर मुख्तलिफ चेयरमैन थे, और यहाँ से मैं इम्तियाज अहमद खान साहब का रेफरेंस देना चाहूँगा। वो बड़े ज़बरदस्त जो हैं चेयरमैन रहे। उनका जो अंदाज़ होता है वो हमेशा आपसे इंट्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं लेते, बल्कि आपको बताते हैं कि अच्छा जेंटलमैन, योर नेम इज़ दिस, सो आप ये बताइए कि यू वेयर आर यू फ्रॉम। सो एक कंफर्ट ज़ोन में शायद वो आपको नहीं लेके आने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा इससे पहले कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, इंट्रोडक्शन का दुरानिया आपका मैक्सिमम 120 सेकंड्स होना चाहिए, यानी कि 2 मिनट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। 2 मिनट अगर आपको इंट्रोडक्शन देने का मौका मिल चुका है, अगर आपसे पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन पे भी बात करने से पहले एक और चीज़ जो है वो नोट कर लीजिएगा कि व्हेन यू आर एंटरिंग इन द रूम, जब आप रूम के अंदर एंटर होते हो, दरवाजा आपने खोला, आप डायरेक्टली चेयर पे नहीं बैठोगे। अगर आप देखते हो कि ये सुबह का टाइम है आपके इंटरव्यू से पहले, तो आप रूम में एंटर होने के बाद देखेंगे कि अगर वहाँ पे 2 मेल हैं, 1 फीमेल है, या सारे के सारे मेल हैं, तो यू विल डेफिनिटली से अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। और अगर वहाँ पे 1 फीमेल है, 2 मेल हैं, तो आप डेफिनिटली ये कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ताकि आप जो है वो मैम को जो है वो बिल्कुल भी एक्सक्लूड ना करें इस डिस्कशन से। उसके बाद इंतज़ार कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए, चेयरमैन साहब आपको खुद कहेंगे कि आप इस चेयर पे बैठें, चेयर वहाँ पे पड़ी होगी। चेयर पे बैठते हुए कुछ चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। ऐसा हुआ 2020 के इंटरव्यूज़ के अंदर, कुछ एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने बैग अपने हाथ में था, जब उसको नीचे रखने लगे बैग गिरा दिया।
अब परेशानी होती है इंटरव्यू के हवाले से, जो लोग कहते हैं कि उन्हें इंटरव्यू की परेशानी नहीं होती है, आई डोंट नो कि व्हाई दे आर टेलिंग अ लाई, बट इंटरव्यू इन इटसेल्फ एक प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन उसी प्रेशर को डील करने का नाम ही तो इंटरव्यू है। यही तो आपकी कैपेबिलिटी है, रिटन तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब उस चेयर पे जब आप बैठेंगे, बड़े ध्यान से और आराम से बैठेंगे, आप नॉन वर्बल मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे अगर आप देखते हैं कि आपके जो लेटर है, जो आपका लेटर पोस्ट किया गया, कॉल लेटर जो हैं, उसके ऊपर अगर मास्क का लिखा है, तो मास्क उस दिन पहन के जाइए, कोविड-19 के पेश-नज़र, अगर अभी तक हैं ऐसे प्रिकॉशंस जो हैं। और अगर आप चेयर पे बैठते हैं, तो चेयर पे बैठते हुए ये देखिए कि आप कंफर्टेबल हैं, आपने अपनी टाँगें जो हैं वो बिल्कुल सीधी और अपने हाथ जो हैं वो अपने लेग्स के ऊपर रखेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आप एक स्माइल चेहरे पे मेंटेन रखें। आप चेहरे पे अगर आप ये भी फ़ील करते हैं कि आपको चेयर थोड़ी-सी करीब करनी है उसके, तो वैसे नॉर्मली इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आपको उठना है, करीब करना है, तो इस तरह से कि उसकी आवाज़ ना आए, लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर है। अगर किसी इससे पहले आपसे पिछले एस्पिरेंट ने जिसका इंटरव्यू था, जब उसे डेमो के लिए कहा गया हो और उसने चेयर जो है वो उठा के साइड पे रख दी हो, या उसने थोड़ी दूर कर दी हो, वरना उनका पीएन होता है जो कि इसको ठीक कर देता है। बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन की, बट बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स योर इंट्रोडक्शन, आई वांट टू क्लियर दैट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार, इज इट क्लियर? यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे गो फॉर द क्वेश्चन, यू मे टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, otherwise I'm assuming all the things are clear and I will talk about the introduction. Okay, Miss Sharma जो है इनको एक क्वेश्चन है। यस मिस शर्मा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। आपका मैंने हैंड तो लोअर डाउन कर दिया है, बट आपका मैंने माइक ओपन नहीं किया। जी अभी ओपन है, यू मे आस्क द क्वेश्चन मिस शर्मा। योर माइक इज ओपन मिस शर्मा, आई विल वेट फॉर 20 सेकेंड्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर 20 सेकेंड्स तक आप अनम्यूट नहीं करते तो आई विल एज्यूम दैट यू हैव रेज्ड योर हैंड बाय मिस्टेक। Oh yes, yes, I'm going to talk about it, Numan. Okay, so talking about your introduction. अब इंट्रोडक्शन की बारी है, नुमान का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन में दो तरह से चीजें जो है वो प्रोसीड फर्दर करेंगे। मेरी वैसे जाती राय ये है कि जब भी आप अपने इंट्रोड्यूस करवा रहे हो खुद को, इंट्रोडक्शन के अंदर जो है चीजें इस तरह से होनी चाहिए कि आप सबसे पहले यू आर टॉकिंग अबाउट योर मास्टर्स। चेयरमैन साहब जो हैं वो जब भी आपसे क्वेश्चंस करेंगे, मुमकिन है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर मास्टर्स दे आर गोइंग टू स्टॉप यू देयर एंड दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाई मास्टर्स इन इंग्लिश। सो आपको अपनी डिग्री को डिफेंड करना आना चाहिए, व्हाई यू हैव डन योर मास्टर्स इन इंग्लिश। और इम्तियाज अहमद खान साहब या बाकी जो हैं वो मिस आगा परवीन साहिबा तो इस किस्म के भी क्वेश्चंस कर लेते होते हैं कि व्हाई लिटरेचर इन मास्टर्स एंड नॉट पॉलिटिकल साइंस और द अदर सब्जेक्ट्स इन योर ग्रेजुएशन। सो आपको इस चीज को डिफेंड करना आना चाहिए। इंट्रोडक्शन की so स्पेशल पर्सन क्या नेशनल ड्रेस यूज कर सकते हैं, व्हाइट ड्रेस? एंड यस दे कैन, बिल्कुल कर सकते हैं। इन द डॉक्यूमेंट्स पार्ट यू हैव रिटन कैन यू अच्छा नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं है, ये इंट्रोडक्शन के लिए 120 सेकंड्स जो हैं वो बिलावल खलील साहब। अच्छा जी, सो आपको अपने इंट्रोडक्शन में अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करवाने का टाइम मिलेगा, आपको 120 सेकंड्स मैक्सिमम को ज़हन में रखना है कि इससे आप प्रोसीड फर्दर नहीं करोगे। 120 मैक्सिमम से मीन्स ये है कि यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर मास्टर्स और एमफिल। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मेरी एक टिप है आपके लिए, अगर आपने एमफिल आपका कंप्लीट है और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अबाउट योर एमफिल, only then do mention that you have done your masters in philosophy. Otherwise, अगर आप जो हैं समझते हैं कि मैं एमफिल के लेवल तक क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर सकता हूँ, तो आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपके एमफिल के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। ये चीजें याद रखिएगा। बाज़ लोगों को शायद ये गलत फहमी हो जाती है कि उनके एमफिल के कोई मार्क्स होते हैं, इसलिए वो वहां पे बता देते हैं, लेकिन जब फिर क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो फिर वो काफी परेशान हो जाते हैं। So whatever you're mentioning there, be careful, आप उनको खुद क्वेश्चंस देने जा रहे हो।
सो जी मास्टर्स या एमफिल आपने मेंशन किया, उसके बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन की बात की, फिर आपने इंटरमीडिएट की बात की, फिर आपने मैट्रिकुलेशन की बात की। फॉर एग्जांपल, if I'm supposed to introduce myself, definitely I will start by Ismo Bashir Raza. I've completed my MPhil from Government College University Lahore, my master's from the same university, my graduation from the same university, and before that I completed my FSE from Government Graduate College Deska, and before that I've been in Government High School Deska and completed my matriculation in science subjects. यहाँ तक तो ये चीजें हैं आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से, क्वालिफिकेशन के हवाले से। बट यहाँ पे अब जो है एक आपको एक अच्छा पॉइंट ये है, एक एक बड़ी लेजिटिमेट सी ट्रिक है, इफ यू फील, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो। देखिए, आपको अपने इंटरव्यू में थोड़ा-सा स्मार्ट बिहेवियर ऑप्ट करना पड़ता है। आपको अपने इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा ट्रिकी होना पड़ता है। अ, अगला क्वेश्चन आपसे मोस्ट प्रोबेबली वंस यू आर डन विद योर एजुकेशन, तो 2 ही तरह के क्वेश्चन होंगे। ईदर दे आर गोइंग टू आस्क यू द डिटेल्स ऑफ योर सिटी, और दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओके, सो why you want to be the teacher, why you want to join the higher education department as a lecturer. आपको इसका अच्छे खासा आंसर होना चाहिए, और मेरा यहाँ पे मशवरा ये है कि ये ऐसे वैसे नॉर्मली ये बहुत दफ़ा देखने में आया है कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई टीचर है, आपकी मदर है या फादर है, तो उनका ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि माय फादर इज़ अ टीचर, ही इज़ सर्विंग दैट पर्टिकुलर कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी, सो आई वांट टू फॉलो माय फादर इज़ माय एज़ अ रोल मॉडल फॉर मी, तो मैं उनके जो है वो नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ। इसमें आपको जो है प्रिसाइज़ली चीज़ों को मेंशन करके रुकना होगा। आप इसमें अपनी हॉबीज़ को मेंशन ना कीजिएगा। अपनी क्वालिफ़िकेशंस मेंशन करेंगे आप, मास्टर्स को, ग्रेजुएशन को, इंटरमीडिएट को, और उसके बाद जो है अगर आपके पेरेंट्स जो हैं इस पेशन से हैं, इस प्रोफ़ेशन से हैं, उनका पैशन टीचिंग है, आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इट इज़ गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट कि आप जो हैं वो बड़े ढंग से चीज़ों को जो है वो लेके चल सकते हैं, कि आपके पास एम्पल स्पेस होगी कवर करने के लिए जो भी क्वेश्चन उससे रेलेवेंट रहे होंगे। अच्छा जी, इसके बाद जब हम प्रोसीड फर्दर करते हैं, यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन के बाद आपकी सिटी की प्रोफाइल जो है, डेफिनिटली दे आर गोइंग टू आस्क अ लॉट मेनी क्वेश्चंस अबाउट योर सिटी। सो माय रिकमेंडेशंस आर, आपकी सिटी के ऊपर ठीक-ठाक तरीके से काम हुआ होगा। Yes, in case they are going to ask you, in case they're going to, directly ask this question, introduce yourself, then you're supposed to talk about your all academic degrees. Your academics should be there. But in case they are directly asking you the question about your university life, then you're not supposed to mention your school or college level. Okay? Have we answered your question, Numan? Yes, Ms. Ritika, you can mention the details about your favorite personalities, weakness, and strategies if they are talking about your hobbies. I haven't answered your question. Numan, I'm going to unmute you because जो मैं समझ सका उसको मैंने आंसर देने की कोशिश की। आपका माइक ओपन है, हम आपके क्वेश्चन को सुन लेते हैं। So what is your question exactly? आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। आपका माइक ओपन है, नुमान। जी जी सर, मैं ना एक इंटरव्यू के बारे में टिप्स दे रहे थे, वो भी लेक्चरर हैं, 2000 हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप जस्ट अपनी ना लास्ट डिग्री मेंशन करें और इस यूनिवर्सिटी से आपने किया है अपना मास्टर्स या एमफिल, जस्ट वो मेंशन करें, बाकी डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई वाज यू कैन से कि परेशान था कि बाकी डिग्रीज बतानी चाहिए या नहीं। वेल देखिए नुमान, इसमें जो है आपके क्वेश्चन को मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस वे. If you're just going to talk about, they are asking you, give your introduction, and you're saying, I have done my master's from this university, and you're silent after that, it's not going to give them a good impression. Okay. If they're asking you only your university education, I think that you should mention about your last degree. Otherwise, आपको अपनी सारी जो हैं वो डिग्रीज और सारी डिटेल्स बतानी चाहिए. If they are asking you about your proper introduction, because introduction means they want to know the details, what's about your background.
वो तो आप उन्हें ना भी बताएंगे यूनिवर्सिटी, तो उनके पास ऑलरेडी भी डिटेल्स उनके पास होंगे, ठीक है। सो इट इज रिकमेंडेड टू गो एंड मेंशन द डिटेल्स ऑफ योर होल एकेडमिक सेशंस, ठीक है सर। Then, okay, all right, Numan, you're welcome. Then the question about your city. Remember, participant, your city and the details about your city are very important. And city, when you're going to talk about your city, that doesn't mean कि आप उसके गलियों, बाजारों और कोचों की बात करते हैं। आपको अपनी सिटी की नोटेबल पर्सनालिटीज का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिटी, फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज फ्रॉम सियालकोट, so they, like the commission is bound to ask the questions about Muhammad Iqbal, Faiz Ahmed Faiz, Parveen Shakir, or Umaira Ahmed, and those people who are from Sialkot. So Tawfiq Rafat. So ऐसे लोगों के बारे में पूछेंगे। अगर आप मुल्तान से हैं, कसूर से हैं, तो डेफिनेटली आपसे जो है वो बुले शाह के मतलब जो है वो पूछा जाएगा और उनकी पोइट्री के मतलब है। इसी तरह से अगर आप बहावलपुर से हैं, आपको नवाब ऑफ बहावलपुर का पता होना चाहिए। अगर आप लाहौर से हैं, आपको मुगलिया सल्तनत की जो चीज़ें उन्होंने बना के रखी थी उनका पता होना चाहिए। अगर आप फैसलाबाद से हैं, फैसलाबाद की हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसी तरह से कराची से हैं, आपको बाकी डिटेल्स का पता होना चाहिए। सो देयर इज नो शॉर्टकट that you are going to use. You need to know the details about your city, your population, the area, what's about the climate of your city. For example, in an interview, Imtaz Ahmed Khan was the chairman. इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाट आर द फेमस क्रॉप्स ऑफ योर सिटी एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन योर सिटी एंड लाहौर, okay, so can you convert these kilometers into miles? So you should expect these type of questions in your interview. In case अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को फोकस नहीं करेंगे, definitely you will be given the tough time there. सिटी के मुतालिक बात करने से, जब मैं सिटी की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। आपको तहसील का भी पता होना चाहिए अपना, और आपको इसके साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट का भी पता होना चाहिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के मुतालिक आपकी डिटेल्स क्या होनी चाहिए। अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। अब आपसे आपके पीपीएससी जो है वो नॉर्मली आपको ये चॉइस देता है, आपके जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले चेयरपर्सन आपकी हॉबी के बारे में जरूर पूछता है। व्हाट आर योर हॉबीज? जेंटलमैन, ये वो क्वेश्चन है कि जिसमें बाल को आप अपनी कोट के अंदर लेके आ सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है कि जिसमें आप उनको इनडायरेक्टली अपना फेवरेट जॉनरा बता सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो डिटरमिन करेगा कि यू आर गोइंग टू बी इन दिस डिपार्टमेंट और नॉट। याद रखिएगा और ये चीज जहन में बिठा लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे स्किप हो गए, अगर आपको हॉबीज का क्वेश्चन पूछा गया और आपने यहाँ से अपने इंटरव्यू की डायरेक्शंस को अपनी तरफ ना मोड़ा, तो ये एक ऐसी गलती है जो शायद बहुत दूर तक लेके जाए। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाता है व्हाट आर योर हॉबीज। अब आप इंटरेस्टेड हैं अगर विक्टोरियन एज में, आप इंटरेस्टेड हैं एलिज़ाबेथन एज में, do mention that my hobby is book reading and nowadays I'm reading the novel or the drama from this particular writer. So it means कि indirectly आपने बता दिया कि आप इस एज के अंदर इंटरेस्टेड हैं and they're going to ask you the questions from that age. मुमकिन है कि आपने, कुछ लोग यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं and they say sir I haven't any hobby. So ये वो एक ऐसी हॉबी बताते हैं जो उनकी हॉबी होती ही नहीं है। अगर आपकी हॉबी नहीं भी है तो आप अपनी हॉबी बना सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप जो है वो, और लेकिन जो चीज़ आपकी हॉबी नहीं है और उसको आप क्लेम कर रहे हो यहाँ पे कि वो आपकी हॉबी है, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट। यहाँ पे अगर आपने वो ट्रिक यूज की तो ये डेफिनेटली आपके इंटरव्यू को तबाह भी कर देगा। अगर किसी ने ये कहा आई एम इंटरेस्टेड इन बुक रीडिंग एंड नाउअडेज आई एम रीडिंग दिस बुक, लेकिन उसने वो किताब ना पढ़ रखी हो, सो इट मीन्स के इंटरव्यू खत्म हो गया वहीं पर। मिसाल के तौर पे ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह एक बड़ी अच्छी किताब है। मैं टाइम एंड अगेन इसकी बात करता हूँ क्योंकि चेयरमैन साहब ने इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे वो बड़े जबरदस्त। किसी ने कहा कि माय हॉबी इज बुक रीडिंग एंड नाउअडेज आई एम रीडिंग बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। इवन ये बताया नहीं, चेयरमैन ने खुद पूछा कि ओके सो योर हॉबी इज बुक रीडिंग, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट यू आर रीडिंग नाउअडेज? मैंने कहा ट्रेन टू पाकिस्तान। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? खुशवंत सिंह। Okay, what is the profession of Khushwant Singh? Khushwant Singh was a writer. What else? Khushwant Singh was a bureaucrat. What else? He was working for the Radio Pakistan. What else? He was, doing. He was a lawyer, so he was practicing as a lawyer. What else? So कोई 10 के करीब प्रोफेशंस जो हैं और उसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान की सारी डिटेल्स और उसके मुतालिक उसमें से कोई 2-3 कोटेशंस आप बताएं।
सो दैट ये पता चल सके कि आपको कहाँ तक पता है और कहाँ तक डिटेल्स आपके नॉलेज में। सो आपकी हॉबीज पे ग्रिप होनी चाहिए। अब जब आपने हॉबीज के ऊपर ग्रिप कर ली, दो लोग आपको बड़े ढंग से सुन रहे होंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 1 और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2। अब वो आपके इसी फेवरेट जॉनरा के करीब जो हैं, वो उसी एज में से जो ऑथर और राइटर्स हैं, वो उनके मुतालिक क्वेश्चंस पूछें। सो योर हॉबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हॉबी आपने बड़े ढंग से जो है वो मेंशन करनी है। ये हॉबी बहुत ख्याल से एक्सप्लेन कर दी। हॉबी के बाद याद रखिएगा, चेयरमैन आपसे कुछ चीजें जिनमें करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं, जो इनके ऊपर बात करेगा, लेकिन ये इंटरव्यू के शुरू में कभी नहीं होगी। ये कहीं मिडिल में जाके होगी, या मुमकिन है कि जब आप लीव करने जा रहे हैं तब वो मुमकिन है कि आपको जो है वो कुछ जीके के क्वेश्चन जो हैं वो उनको आंसर करना पड़े, और ये चेयरमैन साहब जो हैं वो जीके के क्वेश्चन पूछेंगे। मुमकिन है कि आपके नॉलेज को चेक करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाएँ जो कि पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ के रिलेशनशिप से मुतालिक हैं। मुमकिन है यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आईएमएफ एंड ऑल द थिंग्स, और ये भी मुमकिन है कि चेयरमैन साहब जो हैं वो आपसे कुछ इडियम्स पूछना चाह रहे हों। ये भी मुमकिन है कि आपसे कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो पूछने जा रहे हों, और ये भी मुमकिन है कि आपसे सादा से कुछ अल्फाज जो हैं जैसे स्केजुअल, सिगरेट वगैरह-वगैरह, इनके कुछ स्पेलिंग्स पूछना चाह रहे हो। सो ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल है, बट ये डिपेंड करता है आप अपने इंटरव्यू के किस तरह से लेके चल रहे हैं, किस तरह से आप मूव ऑन कर रहे हैं। चेयरपर्सन साहब जो हैं आपकी पर्सनालिटी को एवेल्युएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद जब आपसे बेसिक कुछ क्वेश्चंस, आपका नाम, डिटेल्स, आपकी हॉबीज और ऐसी चीजें पूछ चुके होते हैं, आपको रिफर करते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 1 की तरफ। याद रखिएगा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 1 और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2 दोनों की प्रेफरेंस और दोनों की एक्सपर्टीज जो है वो मुख्तलिफ है। अगर SS1 जो है वो लिटरेचर में इंटरेस्टेड है, तो SS2 जो है वो लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्टेड होगा। अगर SS1 जो है लिंग्विस्टिक्स में है, तो वो लिटरेचर में होगा। और ये वो लोग होंगे जो डेफिनेटली ऑथर्स होंगे और जिन्होंने लिटरेचर को बड़े ढंग से पढ़ रखा होगा। आप किसी भी स्टेप पे अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 1 या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2 को चीट नहीं कर सकते। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। आप कहीं पे भी कोई ऐसी फिलॉसफी या ऐसी थ्योरी या कोई ऐसी इज़्म जो है वो बयान नहीं कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि शायद मैं स्मार्टली वे से ब बात करूँगा और यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। पीपीएससी के इंटरव्यू में तमाम चीज़ों को बड़े ढंग से लेके चलना होता है, और इसीलिए मैंने जब आज आपके साथ कुछ लेक्चर्स शेयर किए, तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि इनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई पार्टिसिपेंट फ़ील करता है कि उसे लिटरेचर की डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो डीप अंडरस्टैंडिंग को ज़रूर ले लीजिएगा, वरना पीपीएससी आपको नहीं गुज़रने देगा। पीपीएससी कहीं न कहीं पे आपको स्टॉप कर देगा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 1 और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2 के जो क्वेश्चंस हैं, ये नॉर्मली क्वेश्चंस जो हैं वो डिपेंड करेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं, कितना सही आंसर कर रहे हैं, और आप कितने क्वेश्चंस के बाद फील कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस ड्रॉप कर रहे हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन ड्रॉप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस को ढंग से आंसर ना कर पाना, अपने कॉन्फिडेंट को लूज कर जाना, अपने बिला वजह आप फील कर रहे हैं कि आपको जो है वो बॉडी नॉन वर्बल मूवमेंट्स हैं, आपकी उँगलियां जो हैं वो, आप हाथ जो हैं वो उनको चटकना शुरू हो गए हैं, आप जो हैं वो हाथों को एक अजीब तरह से बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, आप जो हैं आपकी जो 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 लोअर मैंडिबुलर है, जो 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 निचला जबड़ा है, आप वहाँ पे कँपकँपी फील कर रहे हैं, आपकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो गई है, आपके फोरहेड पे जो है वो आप फील करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, और आप जो है वो अनकंफर्टेबल ज़ोन में चले जाते हैं, आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। ये सिचुएशंस बहुत मैटर करती हैं। आपने क्वेश्चंस को ड्रॉप किया, देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट। कोई क्वेश्चन नहीं आया, कॉन्फिडेंटली और एंड विद अ स्माइल यू मे से आई एम सॉरी सर, आई विल हैव टू लुक इट, I will recheck the answer of this question. Right now the answer of this question isn't in my mind. स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी कहने की बजाय आप कुछ पोलाइट से वर्ड्स यूज कीजिए। आप जो है वो बता सकते हैं कि आई हैव टू रीचेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम सॉरी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इजंट देयर इन माय माइंड राइट नाउ, आई विल हैव टू लुक इट। सो इस तरह से आप मूव ऑन कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। जो चीजें आपने इसके अलावा याद रखनी है, आप अपने इंटरव्यू में अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, आई कांटेक्ट आपका, ये कुछ अभी हम नॉन वर्बल मूवमेंट पे बात कर लेते हैं। नॉन वर्बल मूवमेंट पे बात करने से पहले मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो सारी की सारी चीजें हैं, क्या वो क्लियर हैं? यहाँ तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं, ये आपके लिए क्लियर है?
so that we may move on from here. नॉन वर्बल में आपके पास जो कुछ चीजें हैं, हम चलें, थैंक यू सो मच बिलावल साहब, हम कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। So these are the questions that I'm going to answer non-verbal communication के बारे में। आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सी चीज़ों का पता होगा, बहुत सी चीज़ों को आप ढंग से समझते होंगे। देखिए, इंटरव्यू ये आपकी ज़िंदगी चेंज करने का एक स्टेप है। इस इंटरव्यू के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, इट्स व्हाट दैट इज़ द रियलिटी। रिमेंबर वन थिंग, इन योर इंटरव्यू आपके एक्सपीरियंस को, आपकी स्किल्स को रिक्रूटर जो हैं वो देखना चाहते हैं कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप जिस कल्चर से आए हैं वो कल्चर कैसा है, और ये इवेल्युएट करते हैं आपकी नॉन वर्बल पर्सनालिटी से, आपकी एंगेजमेंट से, आपके पोस्चर से, आपके जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से और लेवल ऑफ एंगेजमेंट से। Yeah, then there are very bright chances, Fatima. Then there are very bright chances. तो खैर हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहली चीज़, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती क्या है? देखिए, जानते हैं हम कि 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है। Whenever you are talking about non-verbal communication, that means we are talking about those ways that are communicating when we are not speaking. Non-verbal communications communicate when there are no words, without words. So here I am talking about your physical gestures. कैसे इंटर हुए, कैसे दाखिल हुए, झुके हुए थे इंटर होते हुए दरवाजे में से, कैसे क्या इतना झुक जाते हो बात करते हुए कि अगले बंदे को फील होता है कि इसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, अगर किसी बात पे मुस्कुराना पड़ता है, सिर्फ हंसते हैं या खिलखिला के हंस रहे हैं कि पूरे कमरे के अंदर जो है वो आपके खूबसूरत हंसने की गूंज आ रही है, या एक नॉर्मल सा इंप्रेशन आप देते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हैं ये क्यूज हैं, ये वो सिग्नल्स हैं जो दूसरों को बताते हैं कि आपके अंदर क्या है। जनरली आप लोगों को पता नहीं होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये वो हैबिट्स हैं जो अनकॉन्शियसली आपके एक्शंस की वजह से बिल्ड होते हैं। लेकिन आप इनको रीइंफोर्स कर सकते हो, आप इनको कंट्राडिक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हैं वो रीइंफोर्स नहीं है, और आप बहुत अच्छा बोल रहे हो लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो दे आर नॉट सपोर्टिंग योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। जब मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग कि मैं बात करूंगा आपके फेशियल एक्सप्रेशंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन में सबसे अहम बात है आपकी आई की मूवमेंट। अब आपने क्वेश्चन जब किया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने, आपने अपनी आई की मूवमेंट कैसी है, कैसे उठाया आपने अपनी आंखों को, आईब्रो को, क्या क्वेश्चन सुनने के बाद आपकी आपकी माउथ की मूवमेंट कैसी है, क्या वो मुंह खुले का खुला रह गया या आपने कंट्रोल किया? आपके फेशियल एक्सप्रेशन ने आपकी फीलिंग को कम्युनिकेट किया कि हाँ, आप इस क्वेश्चन को सुनने के बाद कितना अपसेट हुए। आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ये पता चला कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे परसीव किया। दूसरी चीज, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपका पोस्चर कैसा है। अब देखें, जब आप चलते हो आपकी बॉडी मूवमेंट बताती है आप कैसे इंसान हैं, आपके इनर में क्या है, आप बैठते कैसे हैं, आप कैसे खड़े होते हैं। सो ये आप बताते हैं कि आप इस सारे के सारे इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में कोई इंटरेस्ट ले रहे हो, बोर्डम फील कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, ये बॉडी मूवमेंट करेंगे। और मेरी रिकमेंडेशन है कि चूंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिटेल से डिस्कस कर सकें, गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर्स इन एन इंटरव्यू, हाउ टू मेंटेन माय बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर्स इन इन एन इंटरव्यू। सो आपको इस पे काफी डिटेल्स में चीजें जो है वो मिल जाए। इसके बाद आपका जेस्चर्स में, जेस्चर से मेरी मुराद वो मूवमेंट है जो अपने हाथों से और अपने बाजुओं से आप करते हैं। जब बात करते हुए आप अपने हाथ को उठाते हैं, आप कुछ एक्सप्लेन करते हैं, जब आप वेविंग करते हैं, जब आप किसी की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, सो दैट मीन्स योर जेस्चर्स। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर जेस्चर व्हाइल यू आर आंसरिंग एन क्वेश्चन। तो आप उस क्वेश्चन को आंसर करते हुए क्या इतने पॉजेसिव तो नहीं हो जाते
कि आपकी मूवमेंट हैंड्स की कैसे हैं, उनकी पॉइंटिंग कैसी है, आपकी किस तरह से मूव ऑन कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज आई कॉन्टेक्ट। जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, पूरे के पूरा उसकी तरफ देखिएगा। आई कॉन्टेक्ट मीन्स व्हेन यू आर स्पीकिंग, आप उनकी तरफ देखें विद whom यू आर स्पीकिंग। अब जो भी सिचुएशन है, आई कांटेक्ट लाजमी है। आई कांटेक्ट से मुराद ये है कि इंटरेस्ट डेवलप होता है, एंगेजमेंट होती है, अट्रैक्शन होती है कि आपने जो है वो, जिससे चेयरमैन साहब क्वेश्चन कर रहे हैं, चेयरमैन साहब से आंखों में आंखें डालें, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आंखों में आंखें डालना और है, आंखें निकालना और है। तो ये फर्क समझेगा कि यू आर नॉट स्टेरिंग, यू आर जस्ट लुकिंग, यू आर जस्ट ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय मिस्टर चेयरमैन। देन अगर आप फील करते हैं कि चेयर का फासला इतना करीब है कि आप टेबल के बिल्कुल ही पास जा रहे हैं, थोड़ा-सा उसको पीछे करने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। अगर आप इतने लंबे हैं, आपको लगता है कि आपकी टाँगें टेबल से टकरा सकती हैं, या आपकी हाइट छोटी है, आपको लगता है कि मैं जो है वो फील कंफर्टेबल नहीं करता चेयर को, आप इनफ स्पेस जो है वो ज़रूर लीजिएगा। अपनी स्पेस जो है, क्योंकि आप ढंग से अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप बोल नहीं सकेंगे। योर वॉइस, द नेक्स्ट थिंग इज़ योर वॉइस। देखिए, अगर मेरे से कोई बात करता है या आपसे कोई बात करता है, वो कैसे बोलता है, उसका वॉल्यूम कहाँ पे होता है, उसकी टोन क्या है, वो कैसे अल्फाज को इस्तेमाल करता है, उसकी पिच क्या है, एक्साइटमेंट है, उसमें वो गुस्सा है, उसमें तंज़िया बात है, उसमें कॉन्फिडेंस है, उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट है, हमें ये नॉन वर्बल मूवमेंट्स जो हैं, वो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर वॉइस, यू नीड टू चेक इट आउट कि जब आप बात करते हैं, क्या आपकी आवाज में या इंट्रोडक्शन में कहीं ऐसी चीजें तो नहीं है जो आपको ये तासुर देते हैं चेयर पर्सन को कि ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इन डिटेल्स को बड़े ढंग से फोकस करने की जरूरत है। सो अब आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, जब आप इंटरव्यू के अंदर हैं, आपको ये समझना है कि आपकी नॉन वर्बल मूवमेंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो क्या सिग्नल्स दे रहे हैं। आप अपने दोस्त को विंकिंग करते हो, कहीं किसी जगह पे एक हल्की सी उसको जो है वो विंक करते हो, उसको वो समझ जाता है कि मुझे यहाँ पे जो है वो अभी इसको कवर अप करना है, कोई स्टोरी सुनानी है। अब आप प्रैक्टिस करें अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की। अब जब हम मॉक इंटरव्यूज आपसे लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज में आपकी वॉइस और लॉट मेनी लाइक एस्पेक्ट्स आर देयर कि जिनको हम चेक करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं। आप बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, और सारी की सारी चीजें हम आपको बताते हैं। बट यू नीड टू टेक सम टाइम, और आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपनी ड्रेसिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वो ड्रेसिंग आपको किसी ने रिकमेंड नहीं करनी कि आपके ऊपर ग्रीन कलर सूट करता है, रेड सूट करता है। आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो, अच्छा, साफ-सुथरा, वेल फिटेड सी क्लॉथिंग होनी चाहिए। मिनिमम एक्सेसरीज़ को पहनने की कोशिश कीजिए, साफ-सुथरी चीज़ें हो जाएँ और एनवायरनमेंट के मुताबिक चलिए। इसके अलावा कमरे के अंदर सिर्फ़ एसेंशियल चीज़ों को लेके जाइए। कमरे के अंदर कोशिश करें कि अगर आप बैग लेके जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ़ एसेंशियल चीज़ें हैं। अगर कोई कार्ड कीज़ हैं, नोटपैड है, कोई पेन पेंसिल्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो आप अपनी गाड़ी में या कहीं जो आपके इंटरव्यू के साथ है, उन्हें दे सकते हैं। एक सिचुएशन को हैंडल करने का तरीक़ाकार है, अक्सर लोग इसको करते हैं, ये बड़े मशहूर इंटरव्यूअर्स जो हैं, वो भी हैं। अगर फ़ील करें कि कहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, इंटरव्यू के दौरान नहीं, इंटरव्यू से पहले कमरे के बाहर, मैं दोबारा बता दूँ, you are not supposed to do this when you are there in your interview. I'm talking about when you are there in the waiting room and you're waiting for your turn. At that time, you may go for any gum, for any candy, for any drink, ताकि आप अपने आप को बूस्ट अप कर सको। उस दिन अपने सेल फोन को बंद करके रखिए, जब तक भी आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता। वैसे तो सेल फोन आपको अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन इन केस कि आप जो हैं वो कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकती है, उसको अपने से दूर रखिए, ठीक है? सो इंटरव्यू के अंदर जो ओवरऑल चीज़ें आप करोगे, आई कॉन्टैक्ट रखोगे, सॉफ्टन लहज़ा होना चाहिए जब आप बात करते हो, आपकी गुफ्तगू के अंदर जो है एक शाइस्तापन होना चाहिए, एक मुनासिब सी स्माइल होनी चाहिए, आपकी आईब्रोज़ तभी जो हैं वो उठनी चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग एट समवन एंड यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन। सो
आप जो हैं अपनी चेयर पे जब बैठे हैं, ना तो आपका फ्रंट पे झुकाव इतना ज़्यादा है कि आपके जो हैं वो इंटरव्यू पैनल को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा झुका है, और ना ही इस तरह से होना चाहिए कि झुकाव बिल्कुल ही ना हो। एक बिल्कुल चेयर के साथ आपकी जो है वो जो आपकी बैकबोन है वो उसके साथ होनी चाहिए, और आप एक बिल्कुल जो है वो कि जिस तरह से कहते हैं बावक़ार पर्सनैलिटी के साथ जो है वो बैठे हों। और आपने जो है लीड को फ़ॉलो करना है। लीड से क्या मुराद है? आपका जो इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछता है, इन उसको हर क्वेश्चन के अंदर आपने एक लीड देनी है, एक पॉइंट देना है कि जिस पॉइंट से क्वेश्चंस आगे चल सके। मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछे कि व्हाट आर योर हॉबीज? यू मे मेंशन सर माय हॉबी इज बुक रीडिंग। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट यू आर रीडिंग? Sir, I'm reading Dr. Faustus by Christopher Marlowe because it was not included in the syllabus of my university. So I'm reading Dr. Faustus nowadays. The next question will be, okay, so from which university you are? Because you have mentioned the word, university there. लीड कीजिए। नर्वस होना एक आम सी बात है। अगर आप अपने इंटरव्यू में नर्वस हो भी गए हो, अब अपने आप को कंट्रोल करो, बॉडी लैंग्वेज को। इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खुद को समझाओ कि मुझे दैट्स फाइन, अब इसको कंट्रोल करना है। वैसे इंशाल्लाह आप इतने मॉक इंटरव्यूज में से गुजरोगे, आपकी नर्वसनेस कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन फिर भी गहरी सांस लें, कोशिश करें कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, और अपने माइंड में एक चीज रखें कि आई एम फॉर दिस सीट एंड दिस सीट इज फॉर मी। इस तरह से आप जो हैं अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आप मूव ऑन कर सकते हैं अपनी नर्वसनेस के साथ। यहाँ तक तो चीज़ें कुछ बेसिक्स है, लेकिन ख़ैर यहाँ तक मैं रुकूँगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं तो वो आप अपने क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ से आगे चलेंगे। वी हैव 9 मिनट्स मोर एंड आई वांट टू टेल यू कि आप जो हैं वो किस तरह से अपना फ़ेवरेट जॉनरा जो है वो चूज़ कर सकते हो। व्हेन वी टॉक अबाउट योर फ़ेवरेट राइटर, फ़ेवरेट एज, फ़ेवरेट जॉनरा, अब हम उसकी बात करेंगे। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आप जो हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Okay, if you haven't any question and if everything is clear, you're requested to type clear in the chat box so I may proceed further accordingly. Because if there is a silence, I am not able to perceive anything with this silence, and you're supposed to mention something. Okay. Respected participants, when we are talking about your favorite writer, favorite age, and favorite genre, आपको कमीशन ये ज़रूर गुंजाइश दे देता है, ऑप्शन दे देता है कि आप अपने फेवरेट एज के बारे में बताएँ, फेवरेट राइटर के बारे में बताएँ या फेवरेट पोएट के बारे में बताएँ। आइडियली स्पीकिंग दोनों सिचुएशंस की बात कर लेते हैं। आइडियली स्पीकिंग तो सिचुएशन ये है कि आपका हर एज में से एक फेवरेट राइटर होना चाहिए। एक फेवरेट राइटर, एक नॉवेलिस्ट, एक ड्रामाटिस्ट, एक पोएट हर एज में से होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग जो कि आइडियली स्पीकिंग है। लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग चूँकि ऐसा नहीं करते हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो हैं, आपका एक एज में से या पूरे के पूरे लिटरेचर में से एक फेवरेट राइटर होना चाहिए। आप नॉवेलिस्ट की बात कर लीजिए, आप ड्रामाटिस्ट की बात कर लीजिए, आप पोएट की बात कर लीजिए, और यहाँ पे फेवरेट से मुराद मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरी मुराद ये है कि जब आपने फेवरेट को चूज़ किया, इस तरह से ये है कि जैसे हम जब जो हैं वो व्हेन वी आर गोइंग टू search for a life partner, and when we know what are the details that we need to find out about that person. If you are going for a favorite writer, you need to know all the things starting from very basic till the extreme level, that okay, I'm supposed to know all these details. लेकिन कुछ लोगों को I'm sorry, कुछ लोगों को आप अपना फेवरेट नहीं ले सकते हैं। विलियम शेक्सपियर को आप अपना फेवरेट नहीं ले सकते हैं। विलियम शेक्सपियर बहुत काम हो चुका। जॉन कीट्स को अपना फेवरेट ले सकते हो, लेकिन अगर उस इंटरव्यू में उस दिन सब के सब लोगों ने जॉन कीट्स को अपना फेवरेट नहीं लिया हुआ, या कुछ लोगों ने लिया। होता कुछ यूँ है कि जब एक ही फेवरेट जो है वो कम से कम कोई 15 लोग बता देते हैं, तो इंटरव्यू पैनल इससे उकता जाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। लेट्स टॉक अबाउट
P.B. Shelley, let's talk about Wordsworth, let's talk about Byron. I'm not interested in Keats. So आप खुद इमेजिन करें जब 20 के 20 लोग आके जॉन कीट्स, जेन ऑस्टन, क्रिस्टोफर मार्लो और ऐसे लोग जिनका काम बहुत थोड़ा होगा उनके ऊपर बात करेंगे, तो ये कैसा होगा? ये डेफिनेटली हमें इसको बहुत वाइजली पिक करना है। आप अभी पिक नहीं कीजिए, कल के लिए कुछ बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़हन में रखते हुए अपने फेवरेट को पिक कीजिए। पहली चीज़, आपने अपने फेवरेट के तमाम वर्क्स को, अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ रखा तो आपने उसके तमाम वर्क्स की समरीज पढ़ी हो। आपने विकिपीडिया से उस पर्सन की पूरी लाइफ हिस्ट्री, उसने कब कहाँ क्या-क्या किया एकेडमिकली स्पीकिंग, आपको पता होना चाहिए। उसके वर्क ने क्या-क्या काम लॉन्च किए। इफ यू टॉक अबाउट एस.टी. कॉलरिज हू वाज़ बोर्न इन 1772, डाइड इन 1834, उसने एज टू रिफ्लेक्शन लिखी जिसने बाद में ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है वो एक मूवमेंट थी। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें थी? उसने, अगर एस.टी. कॉलरिज पे बात करें तो इन तमाम चीज़ों को कवर किया। आप नॉवेल में अगर इंटरेस्टेड हो, आपके पास इस चीज़ का आंसर होना चाहिए, व्हाई नॉवेल? व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पोएट्री? आपने एमए इंग्लिश किया या एमफिल इंग्लिश किया, अगर आप लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्टेड हो, तो व्हाई नॉट इन लिटरेचर? यू हैव ऑलरेडी डन लिटरेचर एट योर मास्टर्स। सो यू नीड टू नो ऑल दीज़ डिटेल्स। अगर आप किसी पोएट में इंटरेस्टेड हो, उसी पोएट में इंटरेस्टेड क्यों हो? अगर दूसरे भी पोएट हैं, आप उनमें क्यों नहीं है? अगर आप एज में इंटरेस्टेड हो, तो एक एज एलिज़ाबेथन एज में क्यों हो? विक्टोरियन में क्यों नहीं? कोई ना कोई तो वजह होगी कि आपने इसको चूज़ किया और दूसरे को जो है वो छोड़ा। सो आपको काफ़ी वर्कआउट करना है इन तमाम चीज़ों, और हम अपनी क्लासेस में आपके फेवरेट को पॉलिश करेंगे। आज आप अपना टाइम ले सकते हैं, फेवरेट राइटर को, फेवरेट जॉनरा को, नॉवेल है, ड्रामा है, पोएट्री है, क्यों है, इसका आंसर करेंगे। आपका मास्टर्स एमफिल किस यूनिवर्सिटी से है, उसका डिपार्टमेंट कब बना था, उसमें अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, उस यूनिवर्सिटी के नोटेबल कौन हैं, उसके एल्यूमिनाई में वर्दी पीपल कौन है, आपकी सिटी जो है उसकी डिटेल्स क्या हैं, नोटेबल पीपल उसमें से कौन-कौन से हैं, क्या-क्या डिटेल्स हैं, और आप आज क्लियर करेंगे कि मुझे नॉवेल पसंद है, ड्रामा पसंद है और क्यों पसंद है और कब से पसंद है और उसकी वजूहात क्या हैं। आपकी फ्लुएंसी, योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर वन थिंग, there is no compromise on your fluency. If you're going to communicate in your interview, you're 100% supposed to follow the language in which your interviewer is going to ask the question. If the question is in English, you are supposed to answer the question in English. If they follow the medium of language, the Urdu, so you're going to speak and answer the question in Urdu. But remember one thing, आप artificial accent से गुरेज करोगे। You are not going to talk about in American और the British one जिसमें आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की हुई है। So ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आपकी आसानी के लिए हमारा आज का ये जो सेशन है, आज वाला हमारा लेक्चर जो है, क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आईटी टीम इसको प्लीज अपडेट कर दें जुनैद साहब, ताकि आप इसको ढंग से सुन लें। प्लस इसके साथ साथ होगा क्या, इसके साथ कल के लिए हमारा एक काम ये होगा कि हम जो है कुछ क्वेश्चंस जो इससे पहले वाले इंटरव्यूज में हैं, प्लस रोजाना हमारी जो है, जो आपके साथ लिस्ट शेयर की गई है बुक्स, उसमें से जो पहले क्वेश्चंस पिछले इंटरव्यूज में से पूछे जा चुके हैं, आपने वो क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करने हैं। लेकिन एक बुक को पढ़ते हुए, एक समरी को पढ़ते हुए, टाइम शॉर्ट है, हमें 50 के करीब किताबें करनी है, हम कैसे करेंगे? कल के सेशन में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने फेवरेट जॉनरा को जब ले चुके होंगे, एज को, राइटर को ले चुके होंगे, हमने जो लिस्ट आपके साथ शेयर की है, वो लिस्ट में जो किताबें हैं, वो उनकी रैंकिंग जो है, वो एक ऑर्डर जो है, वो उनकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से है। पहले नंबर वाली किताब सबसे अहम, दूसरे वाली उससे अहम, तीसरे वाली उससे अहम, छोड़नी भी पड़ी, एंड वाली छोड़ सकते हो, ठीक है? आपके पास आई एम श्योर कि आप सबको वो लिस्ट मिल चुकी है। अगर नहीं तो वो दोबारा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उन बुक्स में से डेली बेसिस पे 2 बुक्स को उनमें से प्रिपेयर क्या-क्या करना है, आई विल शेयर ऑल द थिंग्स इन टुमारो सेशन। फेवरेट जॉनर्स को आप ले चुके होंगे, प्लस इसके साथ-साथ हम जो हैं कुछ बेसिक डिटेल्स कवर करेंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं जो इंटरव्यूज में रहे हैं उनको क्लियर करेंगे, प्लस जो आजकल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और केपीके के इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन जीके के हवाले से चल रहे हैं, हम उनको देखेंगे। ये वीक क्लासेस का वीक होगा, इसमें हमारा 100% फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा क्लासेस के हवाले से, और इसके साथ साथ
हम आपके साथ कुछ इडियम्स शेयर करेंगे, कुछ पैरा वर्ड्स शेयर करेंगे जो कि आपके इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इडियम्स और पैरा वर्ड्स हैं उनको, और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे डेली क्लासेस में। अगले वीक से ऑनवर्ड्स हर दिन 1% का मॉक इंटरव्यू होगा। मॉक इंटरव्यू की जो डिटेल्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो भी डेफिनेटली आपके साथ आपकी क्लासेस में जो है वो शेयर कर दी जाएंगी कि किस दिन किसका इंटरव्यू है। पूरा प्लान आपके सामने जो है वो आ जाएगा कि आपने इस दिन आपका इंटरव्यू है, आपको अपने इंटरव्यू को देना कैसे है, तैयार कैसे करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द सेशन अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे रेज योर क्वेश्चन हियर। अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो कल की हम मीटिंग में इंशाल्लाह मिलेंगे। History of English literature, your good name, what is your good name? PC Planet, I'm sorry, I'm unable to understand. What about history of English literature? I have already shared the sessions with you. The history of English literature के जो lectures हैं वो आपके साथ already share कर दिए गए हैं कि उन्होंने आपने उनको खुद से attend करना है। history of English literature के उनमें से जो questions पिछले interviews के हैं वो हम definitely discuss करेंगे PC Planet पर। आप कोई भी ले सकते हैं, आप अलिफ शफक की ले लीजिए। हाँ, फ़हीम आपने अच्छी बात की। अच्छा, हम अपने टाइम को पीछे लेके जा सकते हैं। आई एम सॉरी क्योंकि 7:30 पे हमारा एक और सेशन होता है, मेरे साथ 2-3 सेशंस होते हैं। तो हम इसको क्या 5 पे ले जाएँ, 5 पीएम पे ले जाएँ? इज़ इट फाइन कि हम अपनी क्लास को 5 से 6 पीएम कर लें? ठीक है, हम अपनी क्लास को 5 से 6 पीएम पे कर लें। चलें, ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा ताकि मगरिब की नमाज़ में जो है वो आप देख सकें। आई एम श्योर दैट यू हैव एन्जॉयड योर सेशन एंड यू हैव लर्न्ड अ लॉट मेनी थिंग्स। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सीट आपके लिए है, आप इस सीट के लिए हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी ढंग से। अंडरग्राउंड हो जाएँ, सब चीज़ों को भूल जाएँ। बहुत मिलेंगे हेटर्स कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं करोगे। भाई, इससे पहले भी तुम्हारा क्लियर हुआ था, लेकिन करके दिखाना है इस दफ़ा। इंटरेक्शंस को जो चीज़ें बात की हैं आज के लेक्चर में, जो नोट्स बनाए हैं, इनको कम से कम 4-5 घंटे बैठ के देखो। I'm sure the day is not away when you are going to have your name there in the recommendation list. So till then, take care of yourself and hope to see all of you in tomorrow's session. Khuda Hafiz.